Welcome students. Yesterday we were taking trigonometric equations. There were three theorems. Theorem first was for any real numbers x and y, sin x equal to sin y implies x equal to n pi plus minus 1 raised to power ny, where n belongs to z. This theorem we proved in previous lecture. Now let us take second theorem. Theorem 2 is for any real numbers x and y, cos x equal to cos y implies x is equal to n pi plus minus y and belonging to z. N pi, not n pi, it is 2n pi, sorry. X equal to 2n pi plus minus y, where n belongs to z. We have to prove this theorem. तो बेटा देखिएगा किस तरह करेंगे. Cos x equal to cos y. We can write cos x minus cos y equal to 0. Now cos x minus cos y, theorem identity 20 of this chapter, cos x minus cos y is equal to minus 2y sine of x plus y by 2 sine of x minus y by 2 equal to 0. अगर यहां पर प्लस होता, if there were plus sign, we would have twice cos of x plus y by 2 cos of x minus y by 2. But here it is minus sign, so we have minus 2 sine of x plus y by 2 sine of x minus y by 2. This implies minus 2 is not equal to 0. So either sine of x plus y by 2 is 0 or sine of x minus y by 2 is 0. आपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट की तो उसमें से आपने किया कि when sin x equal to 0 implies x is equal to n pi. x is equal to n pi. तो यहां पर sin x plus y by 2 is 0 है. This implies x plus y by 2 is equal to n pi or x minus y by 2 is equal to n pi. This implies we would have x plus y is equal to 2n pi. This implies x plus y is equal to 2n pi or x minus y is equal to 2n pi. Cross multiplying by 2. This implies x is equal to 2n pi minus y or x is equal to 2n pi plus y. That means x is equal to 2n pi plus y or 2n pi minus y. So we can write x is equal to 2n pi plus y or minus y. That means plus minus y. This implies x is equal to 2n pi either plus y or minus y. That means 2n pi plus minus y, where n belongs to z. This is also because here n belongs to z. So we have proved if cos x equal to cos y, then x equal to 2n pi plus minus y, n belonging to z. Now beta, let us move towards third theorem. This was second theorem. So in second theorem we proved that. What we have proved? Theorem second. Theorem second is for any real numbers x and y, cos x equal to cos y implies x is equal to 2n pi plus minus y, where n belongs to z. Now theorem third. For any real numbers x and y, tan x equal to tan y. Tan x equal to tan y implies x equal to n pi plus y.
implies x equal to n pi plus y, where n belongs to z. That means the solution of this equation tan x equal to tan y is x equal to n pi plus y. If we have tan x equal to tan y, so x should be n pi plus y. How we can prove it? देखिएगा, tan x equal to tan y implies tan x minus tan y equal to 0. This implies tan x minus tan y can be written as sin x by cos x minus sin y by cos y equal to 0. Cross multiplying, this implies sin x cos y minus cos x sin y divided by cos x cos y is equal to 0. Or we can write it as sin x cos y minus cos x sin y. This is sin of x minus y. Sin of x minus y divided by cos x cos y. Cos y is equal to 0. This implies sin of x minus y equal to 0 because this rational number is 0, so its numerator should be 0. Sin of x minus y is 0. Sin x equal to 0 implies x is equal to n pi, where n belongs to z. So यहाँ पर है sin of x minus y equal to 0. This implies x minus y is equal to n pi, n belongs to z. This implies x क्या होगा? n pi plus y, where n belongs to z. That means we have proved that tan x equal to tan y implies x is equal to n pi plus y. So third theorem says that this was theorem first, theorem second, and now theorem third. Theorem third says for any real numbers x and y, tan x equal to tan y implies x is equal to n pi plus y, where n belongs to z. That means we have proved these three theorems which can be used for solving trigonometric equations. Now, theorem first says for any real numbers x and y, sin x equal to sin y implies x is equal to n pi plus minus 1 raised to power n into y. This is first theorem. Theorem second says for any real numbers x and y, cos x equal to cos y implies x is equal to 2n pi plus minus y. N belongs to z. And third theorem says that tan x equal to tan y implies x is equal to n pi plus y. N belongs to z. Now let us move towards exercise 3.4. Find the principal and general solutions of the following equations. Principal solution निकालना है और जनरल solution निकालना है. देखिएगा किस तरह करेंगे ये थ्री थ्योरम्स यूज करके. एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट है tan x equal to root 3. Tan x equal to root 3 implies tan x equal to root 3 कहां पर है tan? tan देखिएगा 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. साइन यहां पर है, कॉस यहां पर है, 0 है तो 0, 1/2, 45 है बीच में, सॉरी, तो 45 डिग्री यहां पर है, 60 डिग्री यहां पर है, 90 डिग्री यहां पर है. ये बन जाएगा 1/√2, √3/2 and 1. This is 1 √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. Now tan क्या निकलेगा? साइन बाय कॉस. देखिएगा यहां पर 0/1 है तो 0, 2 and 2 will cancel out, 1/√3. This will be 1 √3 and 1/0, which is not defined. तो √3 कहां पर आता है? 60 डिग्री. That means which is equal to pi by 3, because 30 degree 0 is 0 radian,
this is pi by 3 radian, this is pi by 4 radian, this is pi by 6 radian, pi by 4 radian, pi by 3 radian and pi by 2 radian. That means pi by 3, tan pi by 3 यहां पर आएगा, tan pi by 3 इस तरह यहां पर, या ये टेबल आपको आएगा कि 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 divide by 4, take root and you will get values. तो tan pi by 3 is root 3, so यहां पर लिखा tan pi by 3, tan x equal to tan y implies x equal to n pi plus y. यहां पर देखिएगा x equal to n pi plus y, this implies x क्या निकलेगा, n pi plus y, y का वैल्यू क्या है, pi by 3, n belongs to z. This is the general solution. This is the general solution. General solution. To find particular solution, हमें particular solution निकालना है. Particular solution put equal to 0 and n equal to 1. क्योंकि particular solution है, देखिएगा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन 0 लेसर इक्वल टू x लेस देन 2 पाई, 0 से 2 पाई तक, 0 इंक्लूडिंग 2 पाई एक्सक्लूडेड, 0 से 2 पाई तक जो भी वैल्यू आएगा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है. तो n इक्वल टू 0 दीजिएगा तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा, n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 2 दिया तो वो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं आएगा. तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा x इक्वल टू पाई बाई 3 और x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3. जब हम 1 वैल्यू देंगे, यहां पर 0 वैल्यू दिया तो पाई बाई 3, 1 वैल्यू दिया तो पाई प्लस पाई बाई 3, विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4 पाई बाई 3. इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है sec x इक्वल टू 2, इसी तरह cot x इक्वल टू रूट 3, cosec x इक्वल टू -2. देखिएगा किस तरह करेंगे, ये देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाऊंगा, 2 तो आपको आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्योंकि इनको चेंज कीजिएगा, सेक कोसेक और कॉट को इनको चेंज करना है साइन कॉस और टैन में. इस तरह ये थ्योरम्स हम यूज कर सकते हैं बाद में. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2. कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2. मैंने भी कहा कि अगर कोसेक सेक और कॉट होगा तो उसको चेंज कीजिएगा साइन टैन और कॉस में. दिस इंप्लाइज वी कैन राइट 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू -2 बाई 1 लिख सकते हैं. टेकिंग रेसिप्रोकल दीजिएगा तो साइन एक्स निकलेगा -1/2. देखिएगा कि माइनस साइन वही रहेगा, तो साइन कहां पर 1/2 है, 30 डिग्री और पाई बाई 6 रेडियंस. वी कैन राइट साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाई 3, और वी कैन राइट साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3, साइन माइनस पाई बाई 3. देखिएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, क्योंकि माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स. We can take minus sine inverse. Sin x equal to sin y. यहां पर देखिएगा x equal to n pi plus -1 raised power y n into y, n belonging to that. This implies x क्या निकलेगा, x is equal to n pi plus -1 raised to power n into minus pi by 3. n belongs to z. ये जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा. अगर इसको रिफाइन करना है तो देखिएगा किस तरह करेंगे, और x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज पावर n प्लस 1, क्योंकि यहां पर -1 रेज पावर n है और यहां पर एक माइनस साइन है, दैट मीन्स -1, तो n प्लस 1 बन जाएगा इंटू पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. तो टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन पुट n इक्वल टू n किसके बराबर दीजिए. देखिएगा अगर हम n देंगे 0 तो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, तो एक सोल्यूशन बन गया. अगर हम n देंगे 1 तो ये बन जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3. n इक्वल टू 0 देंगे तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 3. तो वो देखिएगा पूरी तरह समझिएगा. यहाँ पर अगर n देंगे हम 0
एन जब 0 दिया तो ये 0 बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा -1 raised to power 0 plus 1, that means -1 raised to power 1 which is equal to -π/3। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, तो 0 हम वैल्यू नहीं दे सकते हैं n का। n का वैल्यू दीजिएगा 1 और n का वैल्यू दीजिएगा 2, क्योंकि 1 पर बन जाएगा x इक्वल टू पाई प्लस -1 रेज्ड टू पावर 2π/3 हो गया, पाई प्लस π/3। इसका वैल्यू निकालिएगा, यह पर्टिकुलर सोल्यूशन 1 बन गया। n इक्वल टू 2 दीजिएगा तो 2π प्लस -1 रेज्ड टू पावर 3 π/3, तो ये बन जाएगा 2π - π/3, वो भी लेस देन 2π है, क्योंकि 2π - π/3 इज लेस देन 2π, तो ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाने से पहले यहां पर लिखा है टेक्स्ट में, देखिएगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनका सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिएगा किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। cos 4x इक्वल टू cos 2x, cos ऑफ 4x इक्वल टू cos 2x। तो हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा cos x इक्वल टू cos y implies x इक्वल टू 2n pi plus minus y, n belongs to that। This implies cos of 4x is equal to 2n pi plus minus 2x, n belongs to z। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। This implies we can write 4x is equal to 2n pi plus 2x or 4x equal to 2n pi minus 2x where n belongs to z। This implies 4x minus 2x is equal to 2n pi or 4x plus 2x equal to 2n pi, because n belongs to z। इस तरह देखिए, तो 4x minus 2x is 2x is equal to 2n pi, or 4x plus 2x is 6x equal to 2n pi, n belongs to z। 2 and 2 will cancel out, 2 3s are 6, 2, so this implies x क्या निकला, n pi, और x is equal to n pi/3, n belongs to z। तो पहले से फिर समझिएगा, cos 4x equal to cos 2x, cos 4x equal to cos 2x, cos x equal to cos y implies x equal to 2n pi plus minus y, n belongs to z। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां पर रिप्लेस x by 4x and y by 2x, we will get 4x, यहां पर 4x और यहां पर 2x आएगा। 4x equal to 2n pi plus minus 2x, n belongs to z। That means 4x equal to 2n pi plus 2x or 4x equal to 2n pi minus 2x, n belongs to z। 4x minus 2x equal to 2n pi और 4x plus 2x equal to 2n pi, क्योंकि minus 2x है तो 2x plus बन जाएगा। तो यहां पर बचता है 2x equal to 2n pi, यहां पर बचता है 4x plus 2x 6x equal to 2n pi, 2 कॉमन काटो तो x equal to n pi और x equal to n pi/3। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 इज cos of 3x plus cos x minus cos 2x, cos of 3x plus cos x minus cos 2x। cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0। देखिएगा किस तरह करेंगे। cos 3x equal to, हमारे पास फॉर्मूला है cos 3x, cos of 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x। तो दीजिएगा ये यहां पर 4 cos cube x minus 3 cos x, उसके बाद आता है माइनस cos x माइनस cos 2x। cos 2x का वैल्यू जो है वो बन जाएगा ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1,
ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, हाँ यही वैल्यू होता है। तो ये बन जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 4 cos एक्स, हाँ पहले एक बात, 4 cos क्यूब एक्स यहां पर रखिएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स उसके बाद माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos एक्स, 4 cos एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है cos एक्स में। तो देखिएगा किस तरह आएगा। अब क्या करना है यहां पर? पुट cos एक्स इक्वल टू टी, और हमारे पास इक्वेशन आएगी 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आएगा? तो t का वैल्यू निकालिएगा। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको ट्रायल एंड मेथड से आप t का वैल्यू निकालिएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? ये हाँ, तो हमने यहां पर एक मिस्टेक हो गई है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, हमने लिखा था cos 3x माइनस cos x माइनस cos 2, यहां पर प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 है। तो दिस इंप्लाइज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, क्योंकि cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस cos x माइनस cos 2x बन जाएगा ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यहां पर रखिएगा प्लस cos x माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4 cos क्यूब x माइनस 2 cos स्क्वायर x यहां पर लाइएगा, माइनस 3 cos x प्लस cos x बन जाएगा माइनस 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। पुट cos x इक्वल टू t, दैट मीन्स 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कॉमन निकालिएगा यहां पर 2t स्क्वायर, तो बन जाएगा यहां रहेगा 2t, क्योंकि t स्क्वायर तो कॉमन निकला, t 4 में से 2 तो 2 रहेगा, ये 2t स्क्वायर तो कॉमन निकला, यहां रहेगा 1। यहां से माइनस 1 कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। दिस इंप्लाइज 2t माइनस 1 एंड 2t माइनस 1, 2t माइनस 1 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पर आएगा दिस इंप्लाइज 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। This implies t equal to 1 by 2 or t square equal to 1 by 2. This implies t is equal to 1 by 2 or t is equal to plus minus 1 by root 2. तो अब t का वैल्यू वापस दीजिएगा। तो t का वैल्यू जब वापस दिया तो क्या बन जाएगा? t तो cos x के बराबर है, तो cos x equal to 1 by 2, cos x equal to 1 by 2 और cos x equal to plus minus 1 by root 2. This implies cos x equal to 1 by 2 or cos x equal to 1 by root 2 or cos x equal to minus 1 by root 2. तो 1 by 2 cos x का वैल्यू कहां पर है? 60 डिग्री और पाई बाई 3, 1 by root 2 पाई बाई 4। तो देखिएगा ये बन जाएगा cos x, this implies cos x equal to cos pi by 3 or cos x equal to
cos of pi by 4 or cos x equal to minus cos of pi by 4. This implies cos x equal to pi by 3 or cos x equal to pi by 3 cos pi by 3 cos of pi by 4 और यहां पर तो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन के लिए हमें क्या करना है, cos x इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो माइनस बन जाएगा. तो दिस इंप्लाइज अब ये फार्मूला यूज करो cos x इक्वल टू cos y, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. दिस इंप्लाइज यहां पर लिख सकते हैं हम x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और ये लिख सकते हैं हम x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 4 1 4 3 पाई बाई 4. तो ये निकले इसके जो जनरल सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन के. x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4. तो इस तरह आप ये कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये सभी इसी पैटर्न पर है. तो इसके साथ ही हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो एक चैप्टर है ये खत्म होता है. तो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम उठाएंगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास. सो हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज बेटा.